بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس دہم، نظم نمبر 1۔ خطاب با جوانان اسلام، علامہ محمد اقبال اس کے شاعر ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس کی تشریح ملاحظہ کریں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں ملت کی سربلندی ہے۔ اقبال نے اسلاف اور آبا و اجداد کے عظیم جنگوں اور فتوحات کے بارے میں نوجوانوں کو آگاہ کیا۔ اقبال نے راستے سے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اسلام کا غیور چہرہ دکھایا۔ جب مسلمانوں نے تلواریں اٹھا کر توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، مسلمانوں نے ظلم و جبر کو روکا اور ظالم کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا۔ مسلمانوں کے اسلاف اور آبا و اجداد نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اقبال نوجوانوں کو ان کے ماضی کو یاد دلا کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ شاندار ماضی تمہاری اسی قوم کا ہے جو آج حاکم سے محکوم بن چکی ہے۔ اقبال ان کے اندر غیرت بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا تمہیں نہیں معلوم تم کس سے نسبت رکھتے ہو؟ تم ایک عظیم تاریخ کے مالک ہو۔ اپنی حیثیت کو پہچانو اور ترقی کی جانب چلو۔ شعر نمبر 2: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ خطاب با جوانان اسلام علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ تم اس عظیم قوم کے فرد ہو جس نے سلطنت ایران کے بادشاہ کا تاج اپنے پیروں میں رون دیا تھا۔ تم اس قوم سے ہو جو تھوڑے تھے مگر انہوں نے سلطنت فارس و روم کو شکست دی۔ مسلمان تو جذبہ جہاد سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر بھلے اس کے پاس تلوار ہو یا نہ ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہوں یا نہ ہو، وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال کا اشارہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہے، جنہوں نے مٹھی پر ایمان والے لوگوں کے ساتھ شہر ایران فتح کیا، مگر وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان دلیر نہیں، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بزدل ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ہیرو بھی اپنے آبا و اجداد کے دلیر مسلمان سپہ سالار نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان غیروں کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسے بہت سے بہادر ہیں جنہیں مسلمان اپنا خضر راہ بنا کر پھر سے کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، و صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ خطاب با جوانان اسلام شاعر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت اور چوری چکاری کے اندھے قانون کی حکمرانی تھی، مگر پھر دین اسلام نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا، اس انقلاب نے عرب کے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اقبال یہاں اوائل کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ صحرا کے رہنے والے، بے آب و گیاہ ریگستان میں مشکل زندگی گزارنے والے لوگ تھے، مگر ایک دن دین اسلام کے آنے سے وہ اتنے مہذب ہو گئے کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ گیا، ان میں زندگی گزارنے کے اصول آ گئے۔ ان بے راہ لوگوں کو ایک راہ مل گئی، انہیں زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا۔ پھر انہوں نے کیسے دنیا کی تقدیر بدلی۔ اسلام سے پہلے وہاں لوگوں میں جہالت تھی اور وہ لوگ ہر برا فعل کرتے تھے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم فرمائی، ان کو منظم زندگی گزارنے کے اصول بتائے، اور پھر انہی لوگوں نے اس دنیا پر حکمرانی کی۔ شعر نمبر 4: گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے
बख्शिश का न था यारा। खताब बा जवाना ने इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि ऐ नौजवानों, तुम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हो जो फ़िक्र में ज़िंदगी गुजारना किसी से सवाल करने से बेहतर समझते थे। मुसलमानों के पास एक गैरत ही तो होती है जिस पर वो कभी समझौता नहीं करते। वो मुफलसी और गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर लेगा, मगर उसकी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि वो किसी से कुछ तलब करे। मुसलमान भले ही खस्ता हाल थे, मगर कोई उनकी गैरत पर दो हर्फ नहीं कह सकता था। उस ज़माने के दौलतमंद भी उन्हें कुछ रकम देने से कतराते थे कि कहीं मुसलमान इसको अपनी तौहीन समझकर बरहम न हो जाएं। वो अल्लाह की इस आजमाइश से खूब वाकिफ़ थे। वो गरीबी को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझकर सजदा शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश के लिए चुना है। इकबाल नौजवानों को इन औसाफ की तलकीन करते हैं कि अपने आप को असलाफ की इस गैरतमंदी की आदत से आरी ना रखो, बल्कि तुम भी उन जैसे गैरतमंद बनो ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तुम पर खोल दी जाएं। अभी हम शेर नंबर 5 करते हैं। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों को उनके आबा व अजदाद की खूबियों के बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में और उनकी सिफात के बारे में क्या बताऊं कि वो एक तरफ दुनिया को फतह कर रहे थे और फतह किया हुए इलाकों पर और आवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो दुनिया और इंसानियत के मुहाफिज और निगहबान भी थे, और वही इस दुनिया को आरास्ता कर रहे थे और दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा रहे थे। सहरा में रहने वाले लोगों के अंदर जो खूबियाँ थीं, वो खूबियाँ इकबाल अपने नौजवानों में भी देखना चाहते थे। इस शेर में इकबाल ने मुसलमानों की ने क्या हमारे आबा व अजदाद की 4 खूबियाँ बताई हैं कि वो जहांगीर थे, जहांदार थे, जहांबान थे और जहां आरा थे। जहांगीर दुनिया को फतह करने वाले, जहांदार दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जहांबान जो दुनिया को बनाने वाले, और जहां आरा इस दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले थे। शेर नंबर 6। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ुज़ूं तर है वो नज़ारा। खताब बा जवाना ने इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि मुस्लिम मिल्लत पस्ती और ज़िल्लत के अंधेरों में कहीं डूब गई है। अब इस मिल्लत को अब नौजवानों के मजबूत सहारे की ज़रूरत है। वो नौजवानों को अपने असलाफ की याद दिलाकर उनके अंदर जोश और वलवला पैदा करना चाहते हैं कि उनके अंदर भी वो औसाफ पैदा हों जिनसे करूने उला के मुसलमानों ने दुनिया में अपना नाम पैदा किया था। वो उम्मत मुसलमा को फिर से उरूज देने के लिए मुसलमान नौजवानों को वो असबाक बताते हैं जिनसे पहले मुसलमानों ने दुनिया की हुक्मरानी अपने हाथ में ली थी। आज का नौजवान मगरिब से बहुत मुतासिर हो गया है, इसी वजह से उसमें जिहाद का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है। वो मादियत और दुनिया परस्ती में मशगूल हो गया है, जिस पर इकबाल सख्त नाला होकर उन्हें इस्लाम की गैरत व हुर्रियत की दास्तान सुनाते हुए जगा रहे हैं। शेर नंबर 7। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। खिताब बा जवाना इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि आज के मुसलमान नौजवानों में इस्लाम की वो लगन और तलब ही नहीं,
नौजवान मगरबी तौर तरीका और तहजीब व तमद्दन से मुतासिर होकर अपने अक़दार खो बैठा है। आजकल के मुसलमानों में ग़ुलामी पाई जाती है, वो अंग्रेज़ों की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। हालांकि मुसलमानों का ये शेवा नहीं, इस्लाम के अवाइल में भी मुसलमानों को यही खदशात लाहक थे कि दुनिया की मजबूत तरीन कौमों में इस्लाम कैसे उभरेगा। इस वक्त मुसलमानों ने गैरत व हमियत से दुनिया में अपना नाम मकाम पैदा किया। मुसलमानों ने इताअत रसूल की तो उन्हें दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ भी मिली। मुसलमानों ने फ़क्र व फाका इख्तियार किया मगर उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया के ख़जाने खोल दिए मगर उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो फिर भी सादगी पसंद थे, आम लिबास ज़ेब तन करते थे, थोड़ा खाते बाकी सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते। मगर आज का नौजवान मुसलमान दुनिया के माल ज़र में खो गया है, उसके किरदार व गुफ्तार में असलाफ की ज़रा भी झलक नज़र नहीं आती। मुसलमान अब सुस्ती का शिकार हो गए हैं और यही उनके ज़वाल का सबब बना है। शेर नंबर 8। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। खिताब बा जवान इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि आजकल के मुसलमानों ने जब इस्लामी तौर तरीका को पसे पुश्त डालकर मगरबी तौर तरीके अपनाए हैं, उसी दिन से हमारा ज़वाल शुरू हो गया है। मुसलमानों ने कुफ्र व शिर्क से लड़ने की बजाय उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली। मुसलमानों ने अपनी तलवारों को जंग आलूद कर दिया और जिहाद का दर्स भूल गए। मुसलमानों ने तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया और अब वो मगरबी फ़िक्र को अपनाए हुए हैं। मुसलमानों के पास दो ही चीज़ें ऐसी थीं जिससे वो हर मर्का फतह करते थे, एक कलामुल्लाह और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। मुसलमानों ने इन दोनों को ही तर्क कर दिया, जिससे अब पस्ती उनका मुकद्दर बन गई है। जब मुसलमानों ने इस्लाम की राह रास्त से हटकर ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस सरबुलंदी से ज़मीन पर उतार दिया। एक वक्त था जब मुसलमानों की हुकूमत 3 बड़े-आज़मों तक फैली हुई थी। फिर मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया और अब वो अपने घरों में कैद गुलामों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शेर नंबर 9। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। खिताब बा जवानान इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि आज मुसलमान बदतरीन हाल में हैं। मुसलमान अब ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कभी इन मुसलमानों ने 1000 बरस तक पूरे बरसगीर पर पूरी शान व शौकत से हुकूमत की थी, मगर अब उस सरज़मीन पर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान आज हुकूमतों का रोना रोते हैं कि उनसे उनका तख्त छीन दिया गया है, अब वो कोई ताकत नहीं रखते, तो ये सरासर गलत है। मुसलमानों के पास जब ये हुकूमतें ना थीं तब भी मुसलमान खुद ही में एक ताकत था। जब बदर के महाज पर 313 के मुकाबला पर 1000 का लश्कर आया तो मुसलमानों ने जवान मर्दी से इस जंग को जीता और अपनी अहमियत कुफार पर वाज़े की। आज भी मुसलमान अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो उन्हें दोबारा उरूज नसीब हो सकता है। शेर नंबर 10। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। सीपारा कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाना। खिताब बा जवानान इस्लाम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो बताते हैं कि मुसलमानों को अपने असलाफ और आबा व अजदाद की उन तालीमात और उन किताबों के खो जाने का कोई मलाल और दुख नहीं। मुसलमानों को जो नसीहतें असलाफ ने की थीं, जो इल्म उन्होंने किताबी शक्ल में हम तक पहुँचाया था, वो मुसलमानों की गफलत थी कि हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया और उससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए। मगर अब मगरिब ने
ان پر غور و فکر کر کے ترقی کر لی ہے۔ یورپ کی یہ ترقی اور عظیم کارنامے دراصل ہمارے اسلاف کی تحقیقات اور علم سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ جابر بن حیان نے علم کیمیا میں، امام غزالی نے فلسفہ میں، اور ابو القاسم زہراوی نے سرجری میں اور علم طب میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ یورپ نے اپنے لیے استعمال کی اور ترقی حاصل کر لی۔ ہم نے اپنے سرمایہ کی قدر نہ کی جو آج مغرب کی لائبریریوں میں رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر اب مسلمان صرف بچتا ہی سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔